Hello students, previous class of the nuclear reaction and different types of nuclear reaction and its different types. The schematic diagram of nuclear reaction कौन थिला I plus T, that is called produces F, and that is P plus O plus Q. Clear? This is the nuclear reaction that our block schematic diagram थिला. ताले एटा को हमें कौन कहते incoming particle, and this is your थिला target nucleus, and this is the compound. लिखे C not F, C compound nucleus, and this is the product nucleus, and this is your outgoing particle. एति बात आम काली पढ़ी है आम काली डिस्कसन करते जिनस इनकमिंग पार्टिकल. आइदर इनकमिंग पार्टिकल कौन हो पारे, अल्फा हो पारे, प्रोटॉन हो पारे, न्यूट्रॉन हो पारे, फोटॉन बा गामा हो पारे. टारगेट न्यूक्लियस ऑन व्हिच दिस पार्टिकल इज स्ट्राइक्ड कंपाउंड न्यूक्लियस, एंड दिस कंपाउंड न्यूक्लियस भांगी कौन देला प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल. सिमिलरली आउटगोइंग पार्टिकल मध्य सेमती अल्फा हो पारे, प्रोटॉन हो पारे, फोटॉन हो पारे, न्यूट्रॉन हो पारे. नेक्स्ट तो आज हम देखिबा क्यू. ए क्यू कौन ना, क्यू हैला क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन. क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आ माने कौन. तो आम बर्तमान देखिबा टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन. हैला तो एटा थिला incoming reactant side, and this is the product side. है ताले Q value कहला में कौन बुझिबा. What do you mean by Q value? The Q value in a nuclear reaction is the net change in kinetic energy. है it is the total change in kinetic energy in the nuclear reaction. It is the total change in kinetic energy of the nuclear reaction. Kinetic energy of the reaction. Clear? Reaction. है तो it is the total change in kinetic energy of the reaction. This is the Q value बा कहा जाए एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मध्य कहा जाए. है तेणु जेहेतु इट इज द सम ऑफ द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन. तेणु कहा जाए इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन. न्यूक्लियर एनर्जी reaction. Clear? तले बर्तमान देखिए how can you find out the Q value of a nuclear reaction. तले Q value कहला में कौन बुझिले, that is the total change in kinetic energy. Total change in kinetic energy means that is the kinetic energy of the product and the kinetic energy of the initial. है ना. Suppose माने करा EP है ना, I माने कर this is the EI, this is the kinetic energy of the incoming particle. EI kinetic energy of incoming particle I. Then ET, that is the kinetic energy of the target. Kinetic energy of a target
नेक्स्ट ईपी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कहार प्रोडक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट nucleus and EO kinetic energy of कहार that is the outgoing radiation bounding particle है तले EI है kinetic energy of the incoming particle, ET है kinetic energy of the target, EP है kinetic energy of the कहार product and EO है तले kinetic energy of the कहार that is equal to 0 तले बर्तन कौन देखो तल that is equal to एट तले Q value केते गला देखो तल what is the Q value तले Q value तले बर्तन देखो what is the sum of this kinetic energy तले reactant side रे sum of the kinetic energy केते गला EI plus ET product वाले देखो kinetic energy केते गला that is equal to EP plus E0 clear तले incoming by reactant side रे kinetic energy ला EI plus ET एवं product side रे kinetic energy ला EP plus E0 तले what is the Q value that is equal to change in kinetic energy है तल this is equal to कहते गला that is the kinetic energy of the product तल EP plus E0 minus कहते गला that is equal to EI plus E0 ET बर्तन देखो but here target है कौन सी the target is rest जे तो target is at rest as the target is at rest तल the kinetic energy कहते गला दरे energy कहते गला 0 तल अतएव तल Q value is equal कहते गला ना EP plus E0 minus of EI clear this is the Q value of the कहार nuclear reaction तल EP plus E0 minus of EI that is the two net change in kinetic energy of the कहार nuclear reaction है एबे देखियो how can you find out the kinetic energy बा change in kinetic किन बाहर बा Q value किन बाहर करियो है the second term कौन कहै it is also known as the nuclear energy reaction तो आ माने कौन चलो बर्तन देखिबा देखो तो जते बळे रिएक्शन तयारी हला इनकमिंग एंड आउटगोइंग कथा में देखिबा तो इनकमिंग रे के रहला इनकमिंग पार्टिकल्स प्लस टारगेट ए पड़े रहला के P plus O तल बर्तन देखो माने करो r मास हला लेट इट बी MO MI तले रेस्ट मास ऑफ द कहार इनकमिंग पार्टिकल T that is the MT हला r मास माने करो प्रोडक्ट रहला केते MP एवं आउटगोइंग पार्टिकल केते गेला MO तले एपटे हमें कोन पाइले टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट तल दैट इज इक्वल टू MI plus MT एपटे कोन पाइले टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड MP plus M0 तल इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट तो जते बेले ए दुईटा मिसी के बा रिएक्टेंट हे केटा सृष्टि होची सम केसेस कौन देखा गला ना देयर इज अ डिफरेंस इन मास हला तो सम केसेस रे कौन देखा गला तो देयर इज अ डिफरेंस MI plus MT is not equal to कहते गला MP plus MO हला when the nuclear reaction takes place then there is a change in mass of the reactant side and the product side हला अर्थात there is a mass defect then that is equal to loss of mass by mass defect and this mass defect is equal to कहते गला MI plus MT minus that is equal to MP plus MO हला तले कौन देखा गला तो जेथोरे न्यूक्लियर रिएक्शन हला सेतोरे एपटर मास एवं एपटर मास भीतर कौन देखा गला द वेरिएशन देखा गला एंड दिस मास लॉस ऑफ मास is converted into the energy जोडो को हमें कौन से Q value in the nuclear reaction हला तो this mass defect
is converted into energy जोटा कि हमें कोछे Q value in the nuclear reaction हैला ताले Q value केते गेला ताले Q value in nuclear reaction Q value in nuclear reaction is equal to केते हिजबो ना डेल्टा m into c square किंबा एटा हला केते जूल और वी कैन राइट डेल्टा m into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर ताले एबाटे मध्ये हमें ए भଳି भाबरे हमें कोन करि परबा न्यूक्लियर रिएक्शन लो Q वैल्यू बाहर कर परबा केमती ना दैट इज फर्स्ट फाइंड आउट द मास डिफेक्ट कहले हमें कोन बुझिबा ना टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड एंड टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड हला तो रिएक्टेंट साइड रे मास किए ना जे रिएक्टेंट साइड रे दिटा एलिमेंट रहले गोटे हला तमरो इनकमिंग पार्टिकल आउट हला टारगेट न्यूक्लियस ए दिटार मास मिसे देबा प्रोडक्ट रे रहले के द प्रोडक्ट साइड रे प्रोडक्ट एंड आउटगोइंग रेडिएशन ए दिटार मास मिसे दियो देखो व्हाट इज देयर इज अ लॉस इन मास तल जति की मास डिफेक्ट हला दैट मास रो को कन्वर्ट कर एनर्जी केमति करबो आइदर मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर इफ डेल्टा m in kg then you convert in multiply into c square the energy that we obtained that is in terms of joule एवं if the delta m is in terms of amu then हमें कोन करबा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गोलिबा काहे कि ना 1 amu of mass रो एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी ला 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर तो बर्तन देखिबा ए जो कहले तले इन रिएक्टेंट मास एवं प्रोडक्ट मास जो वेरिएशन हला सम केसेस द रिएक्टेंट मास कोन हो प्रोडक्ट मास थारो अधिक होई पारे सम केसेस रे द रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट मास थारो कम होई पारे बर्तन देखिबा फर्स्ट केस तल केस 1 देखिबा केस 1 सपोज केस 1 हला इफ the mass of the reactants mi plus mt is less than mp plus mo suppose आमे देखा गल जदि आमे देखिबा तो रिएक्टेंट रो मास प्रोडक्ट मास थर कमी गला अर्थात एपटे रे मास जहा एपट रो मास कम रिएक्टेंट साइड रो मास प्रोडक्ट मास थर कमिला ताले कोन बे जगह ताले रिएक्टेंट साइड तले मास कमिची केते मास कमिची जति की मास कमिची तार इक्विवेलेंट एनर्जी हमें कोन करबा रिएक्टेंट साइड रे दबा देले जाय कि तमर न्यूक्लियर रिएक्शन हे परिबो कारण एपटे कम मास अछि एपटे अधिक मास अछि ताले एपटे कम मास टा को हमें कोन करियो पड़िबो जति की मास डिफरेंस रहला सति की एनर्जी हमें एपटे दबा पड़ियो को पड़े रिएक्टेंट साइड रे तेनो इन सच केस ताले इन दैट केस ताले कोन परिबा ना डेल्टा m इज नेगेटिव तले जगह रे कोन भला डेल्टा m is negative that implies q value is negative तले q value is negative यदि q value is negative हैला तल दिस q value is negative हैला तले बर्तन एपुडु को आसला तल अर्थात इन the such reaction can be obtained if some energy is required इन द कोठी रिएक्टेंट साइड रे जेतु रिएक्टेंट साइड रे मास कम अछि तण जेति की मास कम अछि ताई सही अनुसार तार इक्विवेलेंट एनर्जी का कोन करियो पड़िबो रिएक्टेंट साइड रे दबाव पड़िबो अर्थात इन दिस रिएक्शन द अमाउंट द एनर्जी इज रिक्वायर्ड तले इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड तल जति की एनर्जी हमर मास डिफेक्ट हला तार इक्विवेलेंट एनर्जी को हम कोन करियो पड़िबो इन इंसिडेंट साइड रे एटा ना कि दैट इज द रिएक्टेंट साइड रे हमको कोन करियो पड़े दबाक पड़िबो दिस इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन तल आपको कोन कहबा तल दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैला थर्मिक मींस हीट तले कोन करियो पड़िबो तले जेहेतु एठी रिएक्टेंट्स पटर मास कम अछि तब हमको ए प्रकार रिएक्शन को करबा हेले न्यूक्लियर रिएक्शन करबा हेले हमको कोन करियो पड़िबो रिएक्टेंट साइड रे इक्विवेलेंट एनर्जी हमको दबा को पड़िबो तेनु एटा कह जाय एंडोथर्मिक रिएक्शन तो नेक्स्ट टाइम देखिबा जस्ट ऑपोजिट केस
Case 2, if the mass in reactant side is greater than the mass of the product side, जदि एपटर मास एपट मास ठारू अधिक अच्छी तमाने कौन है तले एपटे मास अधिक एपटे कम तले एपट जो मास कम है गला कुआडे ना इट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी तो द मास डिफेक्ट जति बाहरला सेटा कौन बाहर एठी एनर्जी रूपे बाहर तले एठी कौन बाहरला में डेल्टा एम इज पॉजिटिव हेलानी हमर डेल्टा एम कौन थिला तले mi प्लस mt माइनस ऑफ mp प्लस mo जेहेतु दिस इज ग्रेटर देन दैट है रिएक्टेंट मास अधिक प्रोडक्ट अपेक्षा तले मास डिफेक्ट कौन है पॉजिटिव तले इफ द मास डिफेक्ट इज पॉजिटिव तले क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव तले जगह कौन मारला क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव तर अर्थात इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड नॉट रिक्वायर्ड एठी कौन हम एनर्जी इज रिलीज्ड ए जगह कौन हम एनर्जी रिलीज है तल जति तुम मास कमिला दैट मास इज कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट एनर्जी तले याकू कहा जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एटा गला एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है तले हमर दुई प्रकार न्यूक्लियर रिएक्शन है सम न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड and some nuclear reaction energy is released तले जो थिरे तमरे एनर्जी रिक्वायर्ड ताकू कहला एंडोथर्मिक रिएक्शन एवं जो थिरे एनर्जी रिलीज हला ताकू हमें कोन कहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर तल दिस इज द क्यू वैल्यू ऑफ द कहर एनर्जी वैल्यू बा क्यू वैल्यू ऑफ कहर न्यूक्लियर रिएक्शन तो नेक्स्ट हम देखिबा तो द्वारा हमें बाइंडिंग एनर्जी हमें देखिथिले इन केस ऑफ ए बाइंडिंग एनर्जी दी कर्व को हमें आउट जिबा पछकू एटा थिला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटा थिला मास नंबर बा न्यूक्लियर हमें कोन देखिले ना 30 रु कम एवं 170 रु अधिक हलानी तो दिस इज हला तल 30 रु कम एवं 170 अधिक तले एटी कोन थिला तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस एपटे कोन थिला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस अर्थात हलानी तो सबुठो मैक्सिमम केते थिला दैट इज इक्वल टू आयरन जोटा कि 8.75 एंड इन बिटवीन दिस 30 रु 170 भितरे एटा थिला केते 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला तो एफ ऑफ द अर्थात फॉर हायर एटॉमिक मास नंबर हलानी तले ए केतरे कोन थिला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज लेस सो दिस न्यूक्लियस आर अनस्टेबल ठीक से बराबर एठी हमर कोन थिला न्यूक्लियर रिएक्शन एठी हमें कोन जानथिले हमर लोअर मास नंबर रे मध्य बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस आर आल्सो वेरी स्मॉल तो इन दिस रीजन अर्थात लोअर एटॉमिक मास नंबर रे हमें कोन करथिले याकू करा जाय न्यूक्लियर फ्यूजन एठी कोन हबो न्यूक्लियर फिजन एडाला न्यूक्लियर फिजन हला अर्थात आज हम देखिबा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दीटा हला कोन तमरा टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हमर दुई प्रकार न्यूक्लियर रिएक्शन गोटाला फिजन आउटला फ्यूजन हला गोटाला फिजन आउटला फ्यूजन तले बर्तन देखिबा न्यूक्लियर फिजन का जेहेतु हेवी एटॉमिक एलिमेंट्स मानकर मास नंबर कम दे आर स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेटेड से माने कोन करंती आपे आपे भांगी जाती एवं भांगी की कोन हुए ना दे कन्वर्ट इनटू मॉडरेट केते थिला 30 रु 170 भितरे हला तले जति गोटे हमें हाई एटॉमिक एलिमेंट्स को हमें बॉम्बार्डमेंट करबा स्लो न्यूट्रॉन साजरे सो एनर्जेटिक पार्टिकल साजरे तले कोन हबो तल दैट हाई एटॉमिक एलिमेंट्स भांगी की कोन हबो तो मॉडरेट एलिमेंट्स न्यूक्लियस रे प्रकाश हबो जार वैल्यू जी 30 रु 170 भितरे बर्तन देखिबा न्यूक्लियर फिजन तो न्यूक्लियर फिजन हला it is a process in which
a heavy nucleus bombarded with a neutron, a heavy nucleus when striked or bombarded with a neutron splitted into the lighter nuclei, splitted into the lighter nuclei and produces a enormous but huge amount of energy है ताले एटा हला किए तो ना न्यूक्लियर फिजन है तो न्यूक्लियर फिजन ले कौन कहा गला ताले इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच ताले एठी कौन करा जीवो ना साधारणतः में कौन करिबा a heavy nucleus when striking with a slow neutron by neutron it is splitted into the lighter nuclei and produces a huge amount of energy हैला तले आमे जेते बळे गोटे हेवी न्यूक्लियस उपरे न्यूट्रॉन टा को बाडेबा तले कोन हबो तले कन्वर्ट हे जिवो कोठी की ना मॉडरेट न्यूक्लियर अर्थात लाइटर न्यूक्लियर कन्वर्ट हवा सहित आउ कोन हबो ए ह्यूज अमाउंट ए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड तले जे हम देखिबा जदी फॉर एग्जांपल सपोज यूरेनियम 92235 when struck bombarded with a neutron 01 then it produces then 92 say 92 এবং यूरेनियम 236 এবং ভাঙি গেটা কোন হবো তাহলে দুইটা লাইটার নিউক্লিয়াই দেব তাহলে ওয়ান ইজ দ ক্রিপ্টন তাহলে গোটা হলা ক্রিপ্টন হলা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 3689 प्लस बेरियम केते देले 56144 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस some q value हैला तल दिस इज द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस एडी वर्क कोन कहला दिस इज a heavy nucleus हैला it is a process in which a heavy nucleus this is your heavy nucleus when bombarded with a neutron or striking with a neutron तले कोन सृष्टि हला टू लाइटर न्यूक्लियाई हला मॉडरेट मु कहै छी सबले कोन हबो 30 रु 170 भितर मॉडरेट न्यूक्लियस उडिको तले गोटे हला क्रिप्टन आउट हला बेरियम तले दुईटा न्यूक्लियस सृष्टि हो सहित आउ कोन हला तीनटा न्यूट्रॉन प्लस एठी कोन पहले क्यू वैल्यू अर्थात ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एटा लाके ना ह्यूज एनर्जी क्लियर तले ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज released तल दिस इज योर ए न्यूक्लियर फिजन तले एटी केते अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हबो ना इट इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला तले केते एनर्जी बाहला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते बळे ना इफ ए वन यूरेनियम न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड बाय इज ब्रोकन बाय ए न्यूट्रॉन तल जदी गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस को हमें भांगीबा ताले कोन हबो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हबो देखिबा केमती एठी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हला मो कहितली हमें केमिति क्यू वैल्यू बाहर करिबा तले प्रथम बाहर करिबा ए दुटार मास केते व्हाट इज द मास तले आर मास हला के mi आर मास के हला mt तले mi प्लस mt को मिसेबा एपटे मास के हला तले एठा हला के प्रोडक्ट ए दुटा होती प्रोडक्ट तले mp के प्लस दिस प्लस ये हला के आउटगोइंग पार्टिकल that is equal to mo तले आपको मिसेबा
तापर आम फेड़ा तो देखा केते मास डिफेक्ट है एवं दैट मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी देखियो हमर केते बाहर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बाहर तल देखिए बर्तमान केमती होछि देखिबा हाउ the 200 mega electron volt is released in the fission of a kahare one uranium ହେଲା ताले प्रथम देखिबा before fission ହେଲା बा before collision before fission जानि परिबा ताले mass of neutron incoming particle that is equal to 1.00865 mu means mu atomic mass unit हैला नेक्स्ट आसला mass of and देखिबा mass of uranium 92235 तल that is equal to हैला 235 point एटा तले 0.439 u क्लियर ताले एटा हला तमरा मास नंबर बट दिस इज ए मास दिस इज द मास नंबर दिस इज द मास डिफरेंस ताले एटा हला बिफोर फ्यूजन अर्थात बिफोर कोलिजन ताले मास ऑफ न्यूट्रॉन केते थिला 1.00869 बट दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेंट साइड्स एवं मास ऑफ यूरेनियम केते गेला एति आफ्टर फ्यूजन ताले फ्यूजन पर कोन भाला फ्यूजन हला पर क्रिप्टन बेरियम और न्यूट्रॉन पाइले देखिबा आफ्टर फ्यूजन हला ताले मास ऑफ नल देखिबा मास ऑफ क्रिप्टन ताले मास ऑफ क्रिप्टन केते गेला 91 point that is equal to 8973 u this is your mass of krypton से बड़े आबरे तापर देखिए मास ऑफ बेरियम केते गेला that is equal to 140 point एटा केते गेला 9139 u clear then तापरे कोन अछि तले ए हला के प्रोडक्ट तले these are the two products are formed next आउ कोन अछि आउटगोइंग रेडिएशन तले मास ऑफ कहार ना 3 न्यूट्रॉन्स तीनटा न्यूट्रॉन अछि 3 न्यूट्रॉन हला तले गोटे न्यूट्रॉन मास केते 1.00865 into 3 तले केते गेला that is equal to 3.02495 u clear तले एपटे पाइले हमें कौन दिस इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेड साइड एंड दिस इज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड एबे हमें देखिबा आपको मिसाई दियो टोटल सम कर दियो तले देखिबा केते मास डिफेक्ट हला तले व्हाट इज द मास डिफेक्ट तले हाउ मच मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन तले को मिसाई दियो तले दिस इज हला तले दिस इज इक्वल टू एडला 236.05265 u 55 u then एपटे को मिसाई दियो देखो तो दिस इज इक्वल टू एटा हे गेला 235.83715 u क्लियर तले एपटे कोन पाइले टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड total mass in product side वर्धन देखो there is a loss एडला 236 एडला 235 तल that is equal to delta m तल delta m is equal to 236.052554 minus 235 into 83715 तल this is equal to एटा केतला 0.2135 u clear तल दिस इज योर मास डिफेक्ट एवं देखो एठी कोन वाला एटा प्लस पॉजिटिव आछि तले पॉजिटिव मींस कोन कहैतिला इफ द पॉजिटिव मास डिफेक्ट इज पॉजिटिव देन तमरा एठी कोन भारिबो देन द q वैल्यू इज पॉजिटिव दैट मींस दिस अमाउंट ऑफ मास एनर्जी इज रिलीज्ड तले q वैल्यू केते गेला तले q वैल्यू
to Q value of the reaction, the Q value of the reaction ताले केते जीवो ताले डेल्टा m जेहेतु it is expressed in U कोन कहथिला मु कोन कहथिले that it is the mass defect in kg, then we multiplied c square. If the mass defect in mass कोड atomic mass unit ताले 1 atomic mass unit हमें कोन जान से ना 1 U is equivalent to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले 1 U is equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले डेल्टा m केते गेला ताले डेल्टा m एठी कोन अछि इनटू 931 into 931 mega electron volt. Then we can write that is equal to 0.2135 into 931. Then this is near about 200 mega electron volt. Clear? This is the 200 mega electron volt. Clear? ताले हमें कौन जानिले ताले ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन व्हेन वन यूरेनियम एटम इज फ्यूज्ड जदि फिजन करिबा हमें यदि गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस को जदि हमें भांगिबा ताले हमें कौन पाउछे ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पाउछे हला ताले ड्यूरिंग द फिजन ऑफ वन यूरेनियम न्यूक्लियस हला वी गेट केते ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हला तले ड्यूरिंग द फिजन तले हम कौन पहले तले ड्यूरिंग द फिजन ऑफ वन यूरेनियम 92235 न्यूक्लियस नहीं ताले a huge amount of energy that is 200 mega electron volt is released here ताले हमें यदि गोटे only one uranium nucleus को यदि भांगिबा ताहले हमें कौन पाइबा ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पाइबा हला ताले हमें देखिबा नाउ इमेजिन द हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर फिजन केमते इमेजिन करिबा जे केते अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहरिला ताले देखो एनर्जी रिलीज कलाती ताले एटा केते हला देखो ताले ड्यूरिंग द फिजन ऑफ वन uranium nucleus a huge energy that is the 200 mega electron volt energy is released हला तल this is equal to हला तले वर्तन देखिबा तल जदी 1 ग्राम मोल ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस को हमें कोन करिया फिजन करिबा हला तले नेक्स्ट तले एनर्जी रिलीज्ड in fission of कहरो 1 gram mole of uranium 92235 हला तो जदी गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस रो हमें एतिक एनर्जी पाउसे तल द एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ 1 gram mole of uranium तल केता तल 1 gram mole of uranium contains how many number of a nucleus that is equal to Avogadro's number of a nucleus that is equal to n0 into केते ना that is equal to केते गला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो ताले गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस भांगिले 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाउचे ताले 1 ग्राम मोल ऑफ कहारो यूरेनियम 1 ग्राम मोल काले कोन बुझिबा 235 ताले 235 ग्राम ऑफ मोल रो हमें केते एनर्जी पाइबा ना दैट इज the 1 gram mole of any element by any nucleus by any atom contains how many number of atoms now Avogadro's number so that is equal to 6.023 into 10 to the power 23 into केते गेला ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट So this much of energy is released in the fission of 1 gram mole of कहरो ना यूरेनियम तो लाके जे में कन्वर्ट करिबा जूल को देखिया केते एनर्जी देखो
ताले वी नो दैट आको मेगा को कन्वर्ट करा ताले 6.023 into 10 to the power 23 into 200 into mega means 10 to the power 6 electron volt. Clear? But we know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 electron volt है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Now put the values here. If we convert into joule, 6.023 into 10 to the power 23 into 200 into 10 to the power 6 into এটা কেতে গেলা 1.6 into 10 to the power minus 19 তাহলে this is a joule ହେଲା তাহলে এତିକି ଆମର joule ପାଇଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା heat energy को convert କରିବା we know that 1 joule is equal to 4.2 बजार value 4.2 joule per calorie ହେଲା ताले बे हमें कौन करिया को ताले 4.2 joule हरी दियो ताले if we divide into 4.2 ताले what we get that is called 6.023 into 10 to the power 23 into 200 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by है এটা কেতে গেলা 4.2 joule ताले this is convert into calorie है ताले हमें कौन पाइले this much amount of calorie पाइले है ताले that is equal to कितना हो देखो ताले this is equal to how much ताले this is equal to 4.6 this is equal to 4.6 into 10 to the power 12 calorie clear है ताले এটা কেতে amount of energy मिलिला that is equal to 4.6 into 10 to the power 12 calorie clear ताले हमें जदि 1 ग्राम of uranium को हसे 1 ग्राम मोल of uranium को भांगु से हैला फ्यूजन करू से ताले हमें केते amount of energy पाइले 4.6 into 10 to the power 12 calorie ताले वर्तमान देखिबा how much amount of this energy हमें वर्तमान रियलाइज करिवा एटा केते अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कहचे कोन यस इट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बट हाउ मच अमाउंट ऑफ इट ताले वर्तमान देखिबा जदि ताले when 1 ton of coal is burnt properly हैला is completely burnt हैला हमें जानि से आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन रे कोन कहिथिले द मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर अर्थात हैला द मास इज नथिंग बट इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी काहे कि ना जेतोळे हमें गोटे मने कर काठ हो कि जे कोन से बॉडी डाको जाळु छे सेते कोन होची द मास रिड्यूस होबा सहित एनर्जी कोन होची इवॉल्व बाहर होची ता माने the mass is converted into the energy telo when 1 ton of kahara coal is completely burnt जदि आमे गोटे टन कोयला को नहीं के जदि कौन करिया completely टन गोटे टन means 1000 kg कोयला को जदि आमे completely burnt करिबा ताले केते amount of heat मिलिबो ताले when 1 ton of coal is completely burnt ताले 8 into 10 to the power 9 calorie of a heat hela burnt produces like produces hela produces 8 into 10 to the power 9 calorie of heat जदि हमें गोटे टन कोयला को अर्थात 1000 केजी कोयला को हमें यदि कंप्लीटली बर्न करिबा ताले हमें केते एनर्जी पाउचे 8 into 10 to the power 9 कैलोरी ऑफ हीट किंतु एठी केते पाइचे मात्र 235 ग्राम यूरेनियम को जते हमें भांगीचे एति के अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलिछ ताले बर्तन देखिबा ताले हाउ मच कोल इज नीडेड टू फाइंड बट टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ इट ताले नेट हैला the amount of coal required
the amount of coal needed, the amount of coal needed ताले केते हो एतिक एनर्जी पाइबा हेले हमकु केते कोयला जालिया को पड़िबो देखबा ताले 4.6 into 10 to the power 12 divided by 8 into 10 to the power 9 ताले this is equal to 575 ताले 575 टन ताले बर्तमान देखो 575 टन अर्थात 575 केजी 1000 केजी 575,000 केजी कोयला जालिले जतिकी आमे एनर्जी पाइबा मात्र 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम को जदि आमे भांगीबा आमे सतिकी एनर्जी पाइबा ताले हमें कोन पाइले ताले एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ कते ना 235 ग्राम ऑफ कहार यूरेनियम हला तले एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन ऑफ 235 ग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू कहा से समान ना एनर्जी रिलीज्ड in the burnt of कहते ना 575 टन कोल बुझ पाइला तले 575 टन कोयला जालिले जतिक एनर्जी पाइबा मात्र 235 ग्राम मात्र ओनली 235 ग्राम को जति आमे भांगीबा ताले सतिक एनर्जी पाइबा तले एबे कोह तले एठी आमे केते एनर्जी पाउ जाय सो इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड त एठो हम अनुमान करू जे कोन पाइले ना गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन रु कोन होछे बा फिजन प्रोसेस रे हमें कोन जानिले द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड तने लागले सो हला वी इमेजिन दैट सो इन न्यूक्लियर रिएक्शन इन nuclear fission हला a huge amount of energy is released clear is released तेणु एठा में कोन जानिले ना जदी एटा न्यूक्लियर फिजन करिबा तले में कोन पाइबा बहुत परिमाणे प्रचुर परिमाणे रे हमें कोन पाइबा एनर्जी पाइबा ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हला इन न्यूक्लियर फिजन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड क्लियर तो नेक्स्ट टाइम देखिबा आमी त न्यूक्लियर रिएक्शन करू जे सेते कोन फिजन प्रोसेस रे कोन कहली रे इन द फिजन प्रोसेस रे हमें कोन कहले यूरेनियम 92 कौन कली मेटी न्यूट्रॉन को बोम्बार्डमेंट कली नहीं कि जते न्यूट्रॉन को नहीं कि हमें कौन करू से गोटे टारगेट न्यूक्लियस तेरे हमें कौन करू से स्ट्राइक करू से व्हाई यूज द न्यूट्रॉन एज ए ट्रिगरिंग एलिमेंट ट्रिगर माने कौन स्ट्राइक करिया पई हमें कौन पई न्यूट्रॉन व्यवहार करू से व्हाई नॉट यूज द प्रोटॉन एंड व्हाई नॉट यूज द इलेक्ट्रॉन क्लियर तो हमें व्हाई वी यूज द न्यूट्रॉन as a triggering element हलानी in case of nuclear fission तले फिजन प्रोसेस रा में कोन करू से गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस इज हियर हमें कोन कर से ता दियो को कोन कले गोटे न्यूट्रॉन टा को स्ट्राइक कर से दिस इज द ट्रिगरिंग स्ट्राइकिंग तले जो ट्रिगरिंग करू से हमें एडी कोन नो से ना यूरेनियम वी कंसीडर द यूरेनियम why we consider not the proton कारण हमें एठी प्रोटॉन को यूज करि परिबा नहीं we cannot use the proton as a triggering element but striking element in nuclear fission why because the proton is nothing but it is a hydrogen nucleus बुझ पाइलो प्रोटॉन टा उडा अछि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जहार चार्ज हला केते दिस वन इट इज a charged particle. It is a nucleus charged particle. Proton is a charged particle, but neutron is a chargeless. Clear? जेतु proton is a charged particle, तल uranium एठी कोन मु कहै छै in the nuclear reaction we only consider the nucleus, not the electrons.
तो जेहेतु यूरेनियम इज ए न्यूक्लियस आर चार्ज केते अछि 92 तले 92 प्लस ई एवं एटा प्रोटॉन आर चार्ज केते जदि हम ए जगह रे प्रोटॉन नबा ठीक अछि तले प्रोटॉन नबा तले एटा केते गेला प्लस ई तले if we consider the proton as a triggering element striking element then what happens तले when this proton comes closer to the कहा सहित ना that is the uranium nucleus तले कोन हबो there is a electrostatic repulsive force हला तले there is a coulombic force that is equal to हला एटा केते हबो ना 1/4 pi epsilon 0 हला q1 q2 by r square अर्थात तल कोन हबो जत्ते बेले एटा डिस्टेंस कमी कमी आसीबो डिस्टेंस जत्ते कमी कमी आसीबो सेते बेले रिपल्सिव फोर्स ता कोन हबो बहुत अधिक हबो जहा फल रे एटा को हमें ये जागी ताधरे स्ट्राइकिंग हेई परिबो नाही कारण रिपल्सन हबो तणो हमें सहित पई कोन करू वी यूज द न्यूट्रॉन जेहेतु न्यूट्रॉन इज ए चार्ज लेस हैला इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कारो uranium hala uranium is a charged particle because uranium is a charged nucleus kintu neutron da chargeless heithibaru tale kon hoba nucleus upare there is no coulombic force तेणु आम न्यूट्रॉन को आम इजिली न्यूट्रॉन टा को आम इजिली कौन करि परिबा ना यूरेनियम ऊपर को स्ट्राइक करि परिबा बट प्रोटॉन को आम स्ट्राइक करि परिबा नहीं काहे कि ना प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज यूरेनियम न्यूक्लियस इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज व्हेन द प्रोटॉन कम्स क्लोजर टू द यूरेनियम न्यूक्लियस ए coulombic repulsive forces exist due to which the proton is not striking this clear हला तल एक गला हमर आजी न्यूक्लियर फिजन हला तल हमर दुई प्रकार न्यूक्लियर रिएक्शन कहले वन इज द न्यूक्लियर फिजन और डला न्यूक्लियर फ्यूजन तो न्यूक्लियर फिजन रे में कोन जानिले we use the heavier elements हां गोटे हेवी एलिमेंट्स को गोटे स्लो न्यूट्रॉन बा न्यूट्रॉन साजरे स्ट्राइकिंग करी कि हमें कोन कले कन्वर्ट कले टू मॉडरेट बट टू लाइटर न्यूक्लियाई एवं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड क्लियर हलानी तला में देखिले न्यूमेरिकली में देखिले जदि गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस को हमें भांगुचे हला न्यूट्रॉन साजरे तला में केते अमाउंट पाउचे ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक से बोलिया बरे जदि 1 मोल ग्राम ऑफ यूरेनियम को भांगीबा हमें केते पाइबा 500 हला ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पाइबा व्हिच इज इक्वल टू 575 टन ऑफ काहरो कोल क्लियर तो नेक्स्ट क्लास में देखिबा दैट इज द न्यूक्लियर the another reaction that is the nuclear fusion hala the next class में nuclear fission that is due to the lighter nuclei